Very good evening. Thank you so much for joining us. And this week on Nurture Life, we welcome Dr. Sitwat Khan, a gold medalist gynecologist and one of Uttar Pradesh's most inspiring women. With over 30 years of experience, India के बाहर, रियाद से के ऑपरेटिंग रूम से लेकर अमेठी के विलेज हेल्थ कैंप्स तक की डॉक्टर खान ने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत जगहों पर बहुत कम्युनिटीज के साथ काम किया है एंड शी इज वन लेडी हु goes beyond. I mean, she just doesn't help heal, she helps reclaim our bodies. I'm not talking about my body, but women's bodies, because it's a very grave issue, especially in our country, where somehow still a lot is being ignored when it comes to women's health. So, today we have Dr. Sitwat Khan. Thank you so much for joining us tonight, ma'am. Good evening, Amir. Thank you very much for having me on your show. And thank you so much for your very warm and welcoming introduction. So, आपने तो बहुत बहुत सारे लेवल्स पे काम किया है, but let's begin with the very beginning. I mean, I obviously asked this question because everybody has to have a why. Why did they choose whatever they chose? So you chose to become a gynecologist and obstetrician. What drew you to this field? Amir, so to start with, really wanted to become a doctor, and Mm-hmm. I have really worked hard for this because in our time, हम लोग के टाइम पे ये पैसे से नहीं होता था, मतलब तब कंपटीशन से ही होता था. सो बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत से डॉक्टर बने, एंड देन आफ्टर पासिंग माय एमबीबीएस I opted to take up as obstetrician and gynecology as my first choice. This was my first choice in MD exam. So unfortunately I was selected. Reasons थे कि एक reason ये भी था कि like I am a female, so I was more comfortable with the women, and I also wanted to do a lot for women. कि women health मेरे लिए बहुत important था. दूसरा, ये फील्ड बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है, इसमें बहुत ही चैलेंजेस हैं, एंड 2 लाइव्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, मदर एंड फीटस की दोनों. प्लस इसमें जो है एक सर्जिकल एस्पेक्ट भी है और मेडिकल एस्पेक्ट भी है. तो हम क्लिनिक्स भी रन करते हैं एज अ फिजिशियन, एंड देन वी आर सर्जन्स ऑल्सो, बिकॉज हमारे फील्ड में कहीं तो हमको एमडी मिलता है, कभी कोई कोई इंस्टीट्यूशंस एमएस देते हैं. सो इट्स लाइक बोथ. और दूसरी चीज ये भी इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग की बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं पेशेंट से. पूरे पूरे 9 months की रिलेशनशिप होती है. एंड द मोस्ट Oh, एंड द it's मोस्ट okay. इम्पोर्टेंट just dropped, yeah. Sorry. And the most important thing, another thing is that this is a very happy field. So Mm-hmm. we bring happiness to the world. हम लोग को जब बच्चा देते हैं, when we treat infertilities and we give kids to the parents, तो वो जो faces होते हैं, happy faces होते हैं, वो भूले नहीं भूल सकते हैं. तो these were some reasons I wanted to become a gynecologist, and so I chose this profession. So brilliant. I think that's a very good enough reason to become a gynecologist or an obstetrician. लेकिन आप ये बताइए कि in your career, I mean, what is what are some of the most neglected aspects of women's health that you've seen, especially in India, amongst the जो rural or middle class families हैं उनमें? आमिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बट बैक Mm-hmm. लाइक 30 years बैक और 30 years से लेके अब तक अगर मैं देखूं तो स्टिल हम women's health is neglected in the family. There are few reasons behind it. एक तो ये है कि सोशो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं. दूसरा ये है कि लिटरेसी भी है, and women are not supposed to be the bread earners. So
मेल्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है हमेशा से फैमिलीज में। और ये सब रीजन से क्या होता था कि कुछ और शेम फैक्टर्स भी थे कि विमेन अपनी सब स्पेशली गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस को तो बहुत छुपाते थे कि किसी को बताना नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का किसी को इल्म नहीं था उस जमाने में भी, और आज भी रूरल एरियाज में तो बहुत ही है। इवन urban areas maybe it is considered to be like something of shame. तो ये चीजें हैं, प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी फीमेल्स की बहुत इग्नोर होती है। रीजंस हैं कि जैसे चाइल्ड बियरिंग में पूरे 9 मंथ्स पे विमेन, मतलब पूरे बच्चा जब होता है तो ये पूरे 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, इसमें a lady needs a lot of mental support, physical support, medications, which is really neglected. और लोग हम्म। सोचते हैं बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो काफी जगह ज्यादा उनको वो नहीं दिया जाता है, कह रहे हो जाएंगे। बट इस पीरियड में जो लेडीज हैं वो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कितनी प्रॉब्लम से गुजरती हैं वो वही जानती हैं। सो दीज आर सम एरियाज। एंड देन मेडिकल हेल्थ भी जो है, सॉरी, मेंटल हेल्थ भी लेडीज की बहुत अफेक्टेड है, स्पेशली इन इंडिया। जो they never come up with the problems, they just try to hide the issues. और अभी थोड़ा urban areas में they have started seeing psychiatrists and all, but there are various reasons, यही reasons हैं जो the women को बहुत ही health issues में issues आते हैं, इनको problems आती हैं इसके लिए इनको। तो ये है। और और एक स्पेशली और चीज। ओके। गायनी के इश्यूज जो हैं उसमें थोड़ा हम्म। सा शेम एक फैक्टर बहुत बड़ा इन्वॉल्व है कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना एक थोड़ा सा स्टिग्मा सा माना जाता है। सो लाइक दे डोंट वांट अदर्स टू नो कि हम किसी गायनी के पास गए थे। दिस इज वन रीजन विच आई सी कि ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है। जैसे कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर के पास, मतलब जी काउंसलर के जी पास जी। या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो होता है वो बड़ा हवा माना जाता है। हवा खैर माना जाता ये हवा तो इवन अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास में भी पाया जाता है है। कि वो हाँ, तो देखो ये पागल हो गए हैं, वो तो पागल हो गए हैं, उसका तो एग्जैक्टली इलाज एग्जैक्टली। चल रहा है। स्पेशली राइट। अनमैरिड बच्चियां जब क्लिनिक्स में आती हैं तो दे से कि मैम, अरे वो भी बैठी है मैम बाहर, तो वो हमें देख लेंगी। ये अच्छी अच्छी फैमिलीज की बच्चियां, तो मतलब अब जो भी है वो सोचती हूँ कि क्यों आए हैं हम आपके पास, अरे वो देख लेंगी, दे आर स्कैर्ड टू कम टू अस। अब राइट। बेचारी कोई भी रीजन से आई हो, बट स्टिल दे आर स्कैर्ड टू कम टू अस। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका स्केर्ड होना जायज भी है, क्योंकि लोग गॉसिप करने लगते हैं ना, अरे वो तो गई थी जी, और पता नहीं क्या चल रहा वही है, वही। क्या हुआ, और ये स्पेशली सुना वो सुना। अनमैरिड अनमैरिड बच्ची आएगी तो वो सोचती है कि कोई ये ना कह दे कि हम वहाँ गए थे, कुछ हो प्रेगनेंसी तो नहीं थी। अनवेड मदर्स, ऑल दिस हम लोग के साथ ये स्टिग्मास रहेंगे, और पहले भी थे और अभी भी हैं। और और अरे रूरल एरियाज की तो लेडीज जो हैं उन्होंने बड़े अजीब अजीब नाम रख रखे हैं। आप, बहुत मजे के नाम हैं। जैसे पीरियड्स तो वो लोग कहते थे कि छत गिर गई, मैम छत गिर गई है। अब छत गिर गई है हम लोगों को समझ में आता था, मतलब वो ये भी नहीं कह सकते थे कि भाई ये मंथली पीरियड आया है। इस तरह की चीजें, बातचीत, तो कुछ कुछ ए, बहुत फनी फनी चीजें थे जो हम लोग को ए, डिकोड करने पड़ते थे कि भाई क्या चीज अपने कह रही दोस्तों से मैंने है। एक नाम सुना है, आंटी आ गई। आंटी आ गई फीमेल फ्रेंड्स जो सुना है, आंटी बहुत आ गई। पुराना पुराना, जी जी, आंटी आ गई, छत गिर गई, इस तरह की And I चीजें initially तो I couldn't make out who's auntie who's coming, and they used to exactly. joke So, around. So G G. And on the contrary, see, I have worked in the Saudi Arabia for good like and UAE for like good 25 years. All my experience was there. वहां पर दे वर मोर ओपन। और जबकि इतनी अच्छा। इस्लामिक सोसाइटी थी, दे वर वेरी ओपन कि ये तकलीफ है, ये मुश्किल है, मतलब अरेबिक में बोलते थे। एंड वहाँ दे वुड प्रेफर मेल गायनोकोलॉजिस्ट। दे सेड कि नहीं, दिस इज ऑल राइट, हम मेल के पास जाएंगे, वो डॉक्टर्स अच्छे होते हैं और ये तो हमारी बीमारी है, इसमें हमें क्या शर्म। वहाँ ऐसा मैंने एटीट्यूड देखा लोगों का। तो I उनको mean, कुछ, जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। नॉर्मल डिलीवरीज, मेल्स would conduct normal deliveries, they would prefer males।
कि they were nicer, they were better, they were like more considerate, empathetic towards them. तो बट इंडिया में अभी भी काफी शर्म और लिहाज है लोगों में, तो This ये is very चीजें interesting. I mean, thinking about it, I would think that they would be more conservative. नहीं, हर तरीके से वो नॉट कहीं एट ऑल ज्यादा जी। conservative होंगे. हमारा तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू बिकॉज माय Mm-hmm. एक्सपीरियंस देयर लाइक आई हैव वर्कड आई स्टार्टेड वर्किंग जस्ट इमीडिएटली माय आफ्टर माय एमडी दैट इज लाइक इन 1990 आई स्टार्टेड वर्किंग टिल डेट आई एम वर्किंग सो वहाँ जो Right. काम मैंने किया तो आई वाज रियली शॉक्ड बिकॉज वहाँ पर जो मेल हमारे जो कंसल्टेंट्स थे दे वर ऑल मेल्स दे वर ऑल ब्रिटिश पीपल सो उनके पास दे वुड हैप्पीली गो और फीमेल अगर होती भी थी तो कहती थी माँ एपुका अना एपुका रज्जाल आई मीन आई वांट अ मेल डॉक्टर तो जाती थी वहाँ पर दिखाती थी आराम से और उनको इस मामले में कोई शर्म नहीं होती थी तो ये एक वहाँ का यूनिक फैक्टर था वो कहती थी कि ये बीमारी है तो बीमारी में कोई वो नहीं है तो ये उनका Very माइंडसेट था interesting. yeah this was interesting and even in UAE also in Saudi Arabia all over Middle East ये बहुत क्लियर था उनका सो So, मेल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत पॉपुलर थे wow. This is something I am still trying to digest. How is it? Because we stereotype. I mean, obviously, एक देखते देखते आदत पड़ जाती है. That's a very आप देखेंगे stereotypical या image of वही theirs. लेकिन पूरा बाया सर ढका हुआ मुंह ढका हुआ बट दे सेड दिस इज अ डिजीज कुछ प्रॉब्लम नहीं थी और मेरे हस्बैंड रेडियोलॉजिस्ट हैं बच्चा रोता था दे वुड से ही उसे थोड़ा सा लाइक गिव हिम मिल्क और समथिंग सो दे यूज्ड टू ब्रेस्ट फीड आराम से ब्रेस्ट फीड करती थी वहां पर तो माय हस्बैंड यूज्ड टू से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ अबाया और इतने ढके छुपे रहते हैं बट ये नियत की बात थी आई थिंक दिस इज ऑल नियत थी उनकी कि दिस इज व्हाट इट इज ये बीमारी है तो ये बीमारी है ऐसा अच्छा I ही think था मतलब हाँ that बहुत makes a अच्छा lot था of ये sense. That's the या practical way to live, actually. आई So नो इंडिया में एक स्टिग्मा, बहुत सारा स्टिग्मा और साइलेंस तो मेंस्ट्रुएशन के अराउंड भी है. आई रिमेम्बर कि I think 10 years back, I made a video about all the female hygiene products available in the market. So I think I posted it on Facebook also. Anyway, या so so menstruation, infertility, menopause, ये सारी चीजों जो menstruation के खास तौर से जो अराउंड जो स्टिग्मा है एंड साइलेंस है, बहुत उसकी वजह स्टिग्मा से है इन सारी चीजों का क्या असर पड़ता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ऊपर? बहुत बहुत असर पड़ता है बिकॉज देखिए मेंस्ट्रुएशन इज एक ऐसा साइक्लिकल पीरियड है जिसके अंदर women are more prone to get infected and especially rural women तो they keep on using some dirty clothes and इतना socio-economic factors भी हैं वहाँ पर तो वो पैसे उसमें नहीं खर्च करना चाहती और that's how they get infected और इन्फेक्शन होता है कभी वो ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है तो उनके रिप्रोडक्टिव उनके यहाँ इनफर्टिलिटीज में द मेन रीजन इज ट्यूबल ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस एंड Okay. इतने खतरनाक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं विच मे लीड टू सर्वाइकल कैंसर इन फ्यूचर तो and they get infected they get rashes they get vaginitis they get all sorts of diseases अब ये अभी जोशना कौर मुझे ले गई थी एक जगह सिधौनी कोई विलेज है वहां पर तो वहां हमने इसी पे बात करी रीयूजेबल पैड्स पे तो वहां भी यही Mm-hmm. हाल था सब एकदम बुरखा ऐसे करके बैठी थी लड़कियां और बात नहीं करना चाह रही थी एक दो मेल जो फोटोग्राफर्स थे का ऐसे ऐसे कर रही थी इनको भगाइए फिर बोलेंगे तो स्टिग्मा जाते जाते जाएगा और धीरे धीरे जा रहा है बट रूरल पॉपुलेशन में स्पेशली लखनऊ में यहाँ पर अभी ठीक है गर्ल्स हु आर एजुकेटेड दे कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स एंड दे डिस्कस so things are improving we are hopeful but still there's a lot of effort So needed to bring talking down the about stigma. rural hysterectomies, that is the correct pronunciation, right? Hysterectomies. Yeah. Yeah. So there's a sharp rise in that. हालांकि एक न्यूज भी थी लेकिन वो तो खैर बहुत ही अलग तरह की थी कि शुगर केन फार्मर्स जो है वो क्या शुगर केन फार्मर्स या किसने कौन महाराष्ट्र में वो
जो औरतें काम करती हैं उनकी जबरदस्ती हिस्टेरेक्टोमी कर दी. सो व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? आई मीन फॉरगेट दैट न्यूज़, बट इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. There's a sharp rise इसका in that. या इट इज एक्चुअली इसका राइज भी हो रहा है, ट्रेंड अभी थोड़ा सा स्टैग्नेंट भी हुआ है. एंड रीजन इज के people think that once you have done with your babies, the babies are born, this organ becomes like a vestigial organ. इसका कुछ काम नहीं रहा अब, तो Mm-hmm. ठीक है ये निकल भी जाए. तो एंड ये होता है कि लाइक आफ्टर 40 years of age, women start getting irregular cycles, they start bleeding heavily at times, and fibroids आ जाते हैं, कभी कभी dysfunctional uterine bleeding हो जाती है, कभी पॉलिप्स हो जाते हैं. तो या इसका जो है एडिनोमाइसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है. तो इनको एंड ये जो प्राइवेट सेक्टर का कल्चर है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का, तो यहाँ पर ये एक रीजन मेन है कि पीपल डोंट वांट टू ट्रीट देम मेडिकली. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस हट निकाल दो आप, बस हिस्टेक्टमी करा लीजिए, यही होता है. और रूरल बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनका ऑलरेडी एनेमिक होते हैं, दे कीप ऑन ब्लीडिंग, मैडम निकाल दीजिए, बस बच्चेदानी हो गया, आप काम इसका निकाल दीजिए. But then this is a big surgery, it's a major surgery, and it's like prone to complications as well. तो इसमें जितना मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है. अब मैं So, फिर से अपनी थोड़ा वहाँ के एक्सपीरियंस की बात बताऊँ आपसे कंपैरिजन में. वहाँ पर कोई नहीं कराता था हिस्टेरेक्टमीज, और होती भी नहीं थी. एंड mm-hmm. आप अनदर एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि वहाँ गायनोकोलॉजिकल डिजीजेस वर लाइक 2%. We have not seen uterine prolapse, we have not seen fibroids, we have not seen dysfunctional uterine bleedings. वहाँ How is सिर्फ it? मेन काम और रीजन ये था कि बच्चे बहुत पैदा होते थे, लाइक दे वर फर्टाइल टिल द एज ऑफ 50. 50 साल की लेडीज Wow. भी आराम से उनके यहाँ बच्चे होते थे. तो आई थिंक ये ऑर्गन्स काम करते रहते थे, एंड दैट्स व्हाई दे हैड नो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज. तो वहाँ हिस्टेरेक्टमीज वर डन ओनली वेरी रेयरली एंड ओनली फॉर like pre-cancerous conditions. But India में it's the opposite. जहाँ बच्चे 2-3 हुए और कोई भी यूट्राइन इशू आया, पेट में दर्द हो रहा है मैम, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, एनीमिया है, कुछ कुछ निकला, तो बच्चेदानी निकलवा दो सीधे, बस यही एक होता है. तो इसकी वजह से ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है. बट अभी जो है वो फाइब्रॉइड्स की लकीली कुछ मेडिकेशंस आ गए हैं मेडिकल. मैं तो बहुत लोगों को डिस्करेज करती हूँ हिस्टेरेक्टमी से, और काफ़ी पीपल हु हैव बीन कमिंग टू मी नो दैट आई कैन लाइक आई ट्राई टू ट्रीट ऑल दीज कंडीशंस मेडिकली, अनलेस कोई प्री कैंसरस कंडीशन है उसमें तो हिस्टेरेक्टमी जायज़ है. अदरवाइज मेडिकल दवाओं से दीज ऑल थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. So is it because the difference, is it because of the kind of nutrition? क्योंकि nutrition और No, I जैसे think sanitary. nutrition, no, nothing to do. I think sanitary, yes, maybe because infections से थोड़ा बहुत तो issue होते हैं, PIDs हो जाते हैं, infections हो जाते हैं, और I think ये वो है more to do with the thing that that organ keeps on working. सऊदी Okay, like अरेबिया you said, में yeah. या नॉर्मली लोगों के वहाँ 8-10 बच्चे बड़ी कॉमन बात थी. मतलब 4 बच्चों के बाद तो वो हिस्ट्रो कराने आती थी, टेस्ट कराने आती थी ट्यूब का, कि हमारी ट्यूब्स देख लीजिए मैम, बच्चे बेबीज नहीं हो रहे थे, ट्यूब्स फंक्शनिंग है कि नहीं. तो यहाँ तो Wow. 2 बच्चे, 1 बच्चे ही. तो ये है कि नेचर का एक है कि जो ऑर्गन काम करता रहता है वो खराब नहीं होता. जहाँ भी आप उसको छोड़ देंगे तो वो उसके अंदर फिर रस लगना शुरू हो जाता है. तो So ये चीज है. एक और सर्जरी में भी तो हम टॉप पर हैं. आई मीन हिस्टेरेक्टमी एक हो गई, लेकिन एक आई थिंक वी हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ सिजेरियंस इन द वर्ल्ड, या सिजेरियन ट्रू, रेट्स. I'll So agree. why I'll again? agree to that because ये तो है वहाँ पर यहाँ सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत हाई है, और ये अर्बन पॉपुलेशन में बहुत हाई है एज कम्पेयर टू द रूरल. रूरल में अभी भी 19% के आसपास है, और अर्बन पॉपुलेशन में इट्स लाइक 50%, आई वुड से इवन मोर देन 50%. इसके रीजंस मैंने भी बहुत आके स्टडी किया कि क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर.
यहाँ देखिए तीन चार रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि ये जो वेल्दियर क्लास है, द अपर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, इनकी बच्चियां जो हैं दे आर मोर डेलिकेट, दे कैनॉट हैंडल द लेबर पेन, इट्स वेरी पेनफुल। एंड इंडिया में अभी भी हमारे पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और ये जितने रीजनल एनेस्थीसियास का अभी भी इतना वो नहीं है, कुछ ही बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स में दे पाते हैं वो लोग, तो उतना पेन लेने के लिए नहीं है। ये वो दोनों साइड की स्टोरी है। बच्चियां भी आके खुद कहती हैं, मैम नो वी डू नॉट वांट टू अंडरगो लेबर एंड सो हमारा सिजेरियन कर दीजिएगा। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में ऑनेस्टली एक गायनेकोलॉजी एक ही सोलो प्रैक्टिस होती है, सो नोबडी वांट्स टू सिट विद द पेशेंट फॉर लॉन्ग आवर्स and wait for normal deliveries. One reason. Number two reason is lack of machines. Like in where I work, we had separate labor rooms for each patient. One patient would be in one labor room. There was a CTG machine round the clock. Then we had pH से भी हम लोग बच्चे का pH ब्लड pH भी करते थे टू सी के बेबी का कहीं ब्रेन एनॉक्सिया तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें मॉनिटर्ड लेबर होता था। जहाँ देखा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वी वुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। यहाँ ये है कि हमारे पास वो मशीन्स भी नहीं है, वो एनेस्थीसिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली। प्लस हम लोगों के जो हमारा एस्पेक्ट है वो ये है कि हम पे इतने बड़े मेडिको लीगल फाइन्स हैं, लाइक करोड़ 10 करोड़ तक का फाइन आजकल हो रहा है डॉक्टर्स पे। तो ये सारी चीज़ों से एंड देन 2 लाइव्स आर इन्वॉल्व, एक बेबी है और एक मदर है, तो दोनों साइड से ये हो रहा है चीज़ प्रॉब्लम। तो Uh, और रूरल में है, रूरल mhm. में विमेन आर मोर एक्टिव, दे आर दे आर थिन बिल्ट और काम करती रहती हैं एंड पैसे भी इतने नहीं है कि सिजेरियन कराएं। उनके यहाँ अभी भी बहुत नॉर्मल डिलीवरीज हैं और उनके यहाँ तो वही अपना दाई वाई आके या लोकल हॉस्पिटल्स में चली जाती हैं और वो नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं उनके। बट उनके यहाँ भी बहुत मिसहैप्स होते हैं। बहुत डॉक्टर वकार बेग हैं यहाँ पीडियाट्रिशियन, उनके पास मैं हमारे साथ थे पहले, हम देखते थे बहुत बच्चे आते थे विद सेरेब्रल पैल्सी, ब्रेन एनॉक्सिया, ड्यूरिंग लेबर मॉनिटरिंग हुई नहीं। और Mhm. तो वो चांस, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अब बच्चे बहुत प्रेशस हैं, इतनी इनफर्टिलिटी हो रही है आजकल, राइस पे है। तो जिसके प्रेगनेंसी हो जाती है और 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं वो कहता है अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, हमको बेबी के दे दीजिए, सिजेरियन करके हमको 2 बच्चे पैदा करने हैं तो हमको अच्छे से हो जाएगा, पेनलेस डिलीवरी है, आराम से हो जाएगा। तो ये रीजंस हैं कुछ थोड़े यहाँ के जो मैंने देखे। One thing I found out was कि private hospitals normally push करते हैं cesarean के लिए हाँ ये करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, because क्योंकि the मैंने cost. बताया आपको। वही सारे वही रीजंस हैं कि एक तो मतलब हमारे दो एक पेशेंट्स ऐसे थे जो कहे नो मैम हमको नॉर्मल चाहिए, उनका ठीक है नॉर्मल बेटा ठीक है। अब जब वो रात के 2 बजे आए और जो 2 लेबर पेन उनको आए, oh, she sat on the bed. She said, "Please do cesarean. I cannot take any more pains." अब उस टाइम रात को सब अरेंज करना जल्दी 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 जल्दी, तो वो एक्चुअली ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, इसमें इट्स लाइक जस्ट लाइक द बॉडी इज टेयरिंग अपार्ट, दैट्स ट्रू। बट Hmm. ये है कि पहले की हम लोग की जनरेशन में तो सबके ही नॉर्मल होते थे, हम लोग तो लास्ट तक काम भी करते रहते थे। अब बच्चों में लड़कियों में भी टॉलरेंस कम हो गई है। आई थिंक थोड़ा वेट गेन भी हो गया है बच्चे का भी। पहले के जो बच्चे थे वो लाइक एवरेज वेट 2.5 2.8 kg का होता था बच्चा। अभी बच्चों का भी जो न्यू बॉर्न से वो भी 3.5 3.4। जहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी में कभी कभी अर्ब्स पैल्सी हो जाती है, कभी कभी बच्चे का हाथ रह जाता है। और जहाँ ज़्यादा बच्चा बड़ा होता है तो नॉर्मल लेबर भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं। ये बहुत अच्छा सवाल इस प्लेटफॉर्म पे आपने पूछा और बहुत लोग समझेंगे भी इस बात को कि ये रिस्क जो है वो पेशेंट भी नहीं उठाना चाहता है और फ्रैंकली गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हो गया तो फिर हम भी आंसरेबल होंगे कि आपका मैम जजमेंट कहाँ था, है ना, ये वाली चीज हो Right. जाती है। Very true. And if we Very have a true. team of doctors, abhi bhi like if it's a big hospital, if they have a team of doctors and they have nurses round the clock who are looking after and they have a CTG going on, तो
वो लोग फिर हो सकता है कि वो लोग मैनेज कर सकें अच्छे से। बट अगर एक बच्चे का भी कुछ हो गया, और होते हैं मिसहैप्स, होते हैं जरूर। देखो सिजेरियन में तो वी गिव जस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया, थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया, एंड द बेबी कम्स आउट विद इन 3 मिनट्स। आई लाइक मैंने इंसिजन दिया एंड द बेबी इज आउट इन 3 मिनट्स। तो वो जो ब्रेन एनॉक्सिया और इन सब के चांसेस नहीं होते हैं बिल्कुल। नॉर्मल लेबर में विथ एवरी कॉन्ट्रैक्शन the fetus is not getting enough oxygen. तो वो एक, and these pains last for like 2 days 3 days। प्राइमी का तो, पहले बेबी का तो 2-3 दिन चलता है। तो ये सारी चीज होती है। बट ये यूएस में और यूके में, सऊदी अरेबिया में, डेवलप्ड कंट्रीज में सब जगह नॉर्मल लेबर को प्रेफर करते हैं। और वो कहते भी हैं, इवन पेशेंट्स बोलेंगे भी तो दे विल नॉट लिसन टू देम। दे विल से नो, यू हैव टू हैव अ नॉर्मल बेबी। But I think they are well equipped with anesthesias, nitrous oxide, and things, pethidine injections, or monitoring during labor is very good there. So, and US में तो epidural anesthesia दे देते हैं, so like that's like a painless delivery. So these are various factors which are responsible. Okay, so I mean, सिर्फ मेडिकली डिफरेंट नहीं है। आई मीन आई थिंक देयर इज आल्सो लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एज फार एज मेंटल हेल्थ गोज, क्योंकि Yeah, mental है, बिल्कुल बिल्कुल। काउंसलिंग और ये सारी चीजें भी रहती हैं। बहुत काम, बहुत जरूरी, बहुत चीजें हैं। जी जी। तो और अब यहाँ ऐसा भी हो गया है कि एक सिजेरियन हुआ है तो लाइक सेकंड नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बट देयर इज अ बिग रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर, सो नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्क। अब वो विशेष सर्कल बनता जा रहा है। कहीं भी पेशेंट ने करा लिया, अब हमारे पास भी आएगा। इवन इफ आई वांट टू गिव इट अ ट्रायल, आई एम वेरी स्कैर्ड, आई विल बी स्कैर्ड कि भैया रप्चर ना हो जाए, एंड हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाली बातें हो जाती हैं सारी। सो बाहर की कंट्रीज और इंडिया में as far as men this thing like I was saying कि mental health for example जी या जी preventive जी और postnatal care जो है वो जी जी। कैसे डिफरेंटली हैंडल करी जाती है? प्रिवेंटिव तो बाहर की कंट्रीज में काफी है, और प्रिवेंटिव तो जर्मनी में आई हैव सीन इन जर्मनी, माय गॉड, हम्म। दे मतलब जर्मनी इज वन बिग कंट्री। जर्मनी एंड यूके दोनों में प्रिवेंशन इज लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके। एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, सब बच्चों के फॉलो अप्स होते हैं, सब विमेन के फॉलो अप होते हैं, लोगों के पीरियोडिक चेकअप्स होते हैं every 6 months, and the healthcare is free, totally covered। पूरा इंश्योरेंस है, पूरा फ्री है उनका। तो वो लोग बुलाते हैं बाय नेम, और बुला के पेशेंट्स जाते हैं, बच्चों की हियरिंग टेस्ट होती है, सब चीज एज अ मेजर टू कैच अप अर्ली। कोई डिजीज अर्ली होगी तो कैच कर लेंगे। बट इंडिया में इट्स मोर on treatment basis, like people only visit a doctor when they are sick. They don't go to the doctor to know the preventive aspect of the disease. राइट, वेरी ट्रू। इकोनॉमिक फैक्टर भी है, पैसा खर्च होता है, बिकॉज आप बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने रेगुलर टेस्ट कराते होंगे अनलेस दे आर सिक। और वहाँ ऐसा है कि इवन यंग पीपल दे हैव टू अंडरगो ईसीजीज टेस्ट। तो ये सब तो डेवलप्ड नेशंस की बात है सब। ये वहाँ पर तो प्रिवेंशन बहुत था, और सऊदीया में भी बहुत था। आते थे लोग लाइक रेगुलर पैप स्मीयर्स कराने, अपने रेगुलर चेकअप्स कराने, और ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस कराने कि देख लीजिए मैम कोई मतलब कोई मास तो नहीं है, कोई अर्ली डिटेक्शन हो जाए। बट यहाँ ये है कि जब हो जाएगा तभी हमारे पास आएंगे। तो ये थोड़ा सा वो भी है। सो टॉकिंग अबाउट पैप स्मीयर्स एंड ब्रेस्ट का जो चेक है वो कितने पीरियड पे कराना चाहिए? पैप स्मीयर देखिए डिपेंड करता है। पैप स्मीयर का पहले मैं बताऊं, पैप स्मीयर जो है एक टेस्ट है विच डिटेक्ट्स, एक ब्रश होता है और एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं एलबीसी। तो उससे हम लोग जो है सर्वाइकल सर्विक्स को थोड़ा स्क्रेप करके और थोड़े सेल्स स्टडी करते हैं लेके। उसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है ये टेस्ट। और सर्वाइकल कैंसर जो है एक वायरस से होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। उसके भी स्ट्रेन्स हैं कुछ, तो कुछ स्ट्रेन्स बहुत विरुलेंट, बहुत डेंजरस है। और तो उसकी तो पैप स्मीयर एंड दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सो ये हम लोग कहते हैं कि एज सून एज द गर्ल गेट्स मैरिड,
उनको पैप स्मीयर अपना कराना चाहिए एंड शी शुड गेट हर पैप स्मीयर एलबीसी डन, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उसमें वायरस की भी स्टडी कराते हैं हम लोग। इफ वायरस Okay. इज नेगेटिव एंड Mm-hmm. if the virus is negative and if there is no other risk factor, she can get it done like every 3 years. It's all right. And after like age of 40 and 50, every 5 years is all right. But if there is a virus HPV detect हुआ है, then तो every 6 months to see कि जरा सा भी change आया सेल में, तो it's better to go for hysterectomy or to remove the cervix or to plan a family soon. ये सार इसमें इसका है ये वाला. And this is readily available in all clinics. But only thing is, I think people are not so aware. ज़्यादा लोगों को पता नहीं है यहाँ पर. तो तो HPV की वैक्सीन भी तो है मेरे ख्याल जी से. जी 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 अभी 2006 से ये बहुत रेवोल्यूशन, मतलब बहुत अच्छा हो गया कि इसकी वैक्सीन आ गई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की. ओनली फैक्ट इसको जो थोड़ा सा लोग नहीं लेते हैं इज द कॉस्ट फैक्टर, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव. तो 3 Okay. वैक्सीन है, सर्वारेक्स है, गार्डिसिल 9 है, गार्डिसिल प्लेन है. तो प्लेन की कॉस्ट आजकल अराउंड 4000 है एंड 3 डोजेस चाहिए होती हैं, तो लगभग 12,000 का ट्रीटमेंट ये पड़ता है. बट दिस इज लाइफ लॉन्ग. और अभी हमारी गवर्नमेंट इसको फ्री नहीं कर पाई है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, तो पीपल हैव टू Hmm. स्पेंड 13 से लेके 26 ईयर्स, 13 से लेके वो सॉरी 9 से लेके 14 ईयर्स तक ओनली 2 डोजेस आर रिक्वायर्ड. और आफ्टर 14 to 26 you have to take 3 doses, 0, 1, 2 months and then 6 months. ऐसे हम लोग देते हैं इसको. बट इससे Okay. बहुत सर्वाइकल कैंसर में ड्रास्टिक डिक्रीज आया है इंडिया में. बहुत डिक्रीज हो गया है, मतलब इंसिडेंस बहुत कम हो गई है सर्वाइकल कैंसर्स की. तो दिस इज अ वेरी गुड वैक्सीन, एवरीबडी शुड टेक इट. और जितना शादी से पहले बच्चियां ले लेंगी उसी में ज्यादा फायदा है, बिकॉज प्रेगनेंसी में ले नहीं सकते इस वैक्सीन को. बिफोर एनी सेक्सुअल एक्सपोजर दे शुड टेक दिस वैक्सीन. तो So it's better to get it at a young age, basically. yeah, yes. And regarding breast cancer is genetic, mostly genetic इसमें है, ब्राका जीन होती है, वो होती है. बट हम लोग यही एजुकेट करते हैं कि भाई अपना सेल्फ एग्जामिनेशन इज द बेस्ट एग्जामिनेशन. एवरी मंथ पीपल शुड एग्जामिन देमसेल्व्स. कोई भी जरा सा भी मास आया तो दे शुड विजिट अ डॉक्टर. देन दे कुड गो फॉर एक्सरे, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड. यहाँ तक तो हम लोग करते हैं. उसके बाद वी हैव टू रेफर दीज पेशेंट्स टू ब्रेस्ट सर्जन्स. सो वी हैव, बिकॉज ब्रेस्ट इज इन द डोमेन ऑफ सर्जरी, तो सर्जन्स फिर टेक ओवर करते हैं. तो एनी इशू तो पहले ही हैंडल हो जाता है. बट इसमें भी इंसिडेंस कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली, बिकॉज अवेयरनेस अब बढ़ रही है. वो पिंक आपने देखा होगा, पिंक मार्चेस होते हैं वहाँ वेस्ट में तो बहुत थे. पिंक रिबन्स, पिंक मार्चेस, Right. कैंपेन Yeah. अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर. तो these are the 2 cancers which are very prevalent amongst women. Okay. So I'm going to ask you a few questions. Let's talk, well, quick answers, okay? So is it normal to have irregular periods after age of 35? या After कंसर्न की बात है. after 35 it's not very normal. After 40 like 40 से लेके 50 तक average age of menopause is between 45 and 50. तो Okay. like 38 39 से लेके वो पीरियड में that is known as perimenopausal age. तो इसमें irregular periods हो सकते हैं. एंड लेकिन irregular periods में अगर periods frequent हैं तो you are losing blood every time, so you have to visit your doctor. बट अगर ये मतलब स्किप कर करके आ रहे हैं एंड तो यू डोंट हैव टू वरी, बट एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए. बिकॉज कभी कभी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं, लाइक इफ यू हैव अ सिस्ट और एडिनोमायोसिस और एनीथिंग. सो ये इससे भी क्या होता है कि पीरियड्स लाइक डिले हो के आते हैं. तो it's better to at least get yourself checked once. So if nothing is there, then this is just a functional problem and it's all right. So ये क्योंकि इसमें क्या होता है, इस पीरियड में योर हार्मोन स्टार्ट फॉलिंग एंड FSH कीप्स राइजिंग, लाइक द बॉडी इज हेडिंग टुवर्ड्स मीनोपॉज. तो मीनोपॉज आएगा, ऐसे नहीं आता एकदम से लाइक फुल स्टॉप लग जाए, नो, ग्रेजुअली आता है. पहले 2 महीने स्किप होगा, फिर 6 महीने. वंस पूरे 10 महीने से लेके 12 महीने तक कोई पीरियड नहीं आ रहा, तब मीनोपॉज को कंसिडर करते हैं कि. और मीनोपॉज के बाद कोई भी ब्लीडिंग
is very dangerous. It has to be looked Okay. at. Yeah. So if you don't bleed for 10 to 12 months and उसके बाद होती है तो फिर it's a big problem. Yeah. Then हमेशा डॉक्टर को देखना चाहिए, because endometrial carcinoma जो कैंसर of the uterus है, उसमें ये this is one symptom of that. But not all postmenopausal bleeding patients will have endometrial carcinoma. Lekin this is like, if we can even catch one lady, if 10 people are bleeding and if we catch one, तो it's understandable कि भैया, और जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा, हिस्टेक्टमी हो जाएगा और उनका कीमोथेरेपी भी नहीं होता, रेडियो भी नहीं होता, नथिंग, और पेशेंट इज क्योर्ड. तो इस तरह से हमारे जो गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स है बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत हैप्पी फील्ड है. इसके कैंसर्स वैंसर्स ही बहुत प्रिवेंशन भी है, बहुत जल्दी पकड़ में भी आने वाले हैं. इसी तरह रेगुलर अल्ट्रासाउंड से भी आप ओवेरियन कैंसर्स को पकड़ सकते हैं. जैसे आफ्टर द एज ऑफ 50-60 आप मतलब एवरी लेडी शुड हैव अल्ट्रासाउंड 6 मंथली, एक अल्ट्रासाउंड करा ले एंड सी कि ओवरीज कैसी हैं. नॉर्मली इस एज पे ओवरीज गेट एट्रोफिक, बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं. तो उसमें अगर कोई सिस्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है, then immediately they should go to the doctor. So we do some medical tests, we have some markers, we can do the markers, and then we can just find it out. If it is like having some high, like markers is CA125, वो बढ़ रहा है तो सीधे सीधे सर्जरी करा के ओवरी निकाल दें, तो फिर वो आपको कीमो एंड यू डोंट हैव टू सफर सो मच, और जल्दी से क्योर हो जाता है. प्रॉब्लम लाइज के जहाँ थोड़ा डिलेज होते हैं सारी चीजें. So एक चीज होती है, I mean, women, I mean, girls, they try to delay their period अगर वो travel कर रहे हैं या कोई special occasion है. So is it safe to do that? It's perfectly safe. It's all right. आराम से ले सकते हैं. This only progesterone only pill होती है. They can do that. But ये है कि they should understand कि this will bring some changes to their body. उनका जो next period आएगा वो उसी हिसाब से आएगा कि जब delay करने के बाद जो period आया है तो उनकी cycle थोड़ी change हो जाएगी, और कभी कभी थोड़ा irregular 2-3 cycles उसके बाद irregular हो जाती हैं. तो मेरे पास तो जो भी पेशेंट्स आते हैं सिंपली कोई डिले नहीं करता. आइदर दे आर गोइंग फॉर अ पिलग्रिमेज और दे आर गोइंग लाइक फॉर कोई स्विमिंग जाने जा रहा है, कोई कहीं जाना चाह रहा है हॉलीडे पे, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होता है, तो इट इज ऑल राइट. इट इज नॉट वेरी रिस्की थिंग. दे कैन डू इट आराम से, नो प्रॉब्लम्स. ओके, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है. आई मीन दे आर अंडर सीवियर पेन, अनमैनेजेबल पेन ऑलमोस्ट. इज इट नॉर्मल और इज इट समथिंग व्हिच इज ऑफ कंसर्न? ये जो डिस्मेनोरिया की बात कर रहे हैं आप, जो डिस्मेनोरिया कहलाता है पेन ड्यूरिंग साइकिल्स, ये इट्स वेरी इसका लाइक कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता है, और इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड वेरीज फ्रॉम साइकिल टू साइकिल. किसी साइकिल में होगा, किसी में नहीं होगा. इसका पेन का रीजन तो 3 है. एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब एक होते हैं, वो रिलीज होते हैं, एंड उसी से ना यूट्रस ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेन होता है. अब ये पेन नॉर्मल भी होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है. और अगर ये पेन शुरू में हो रहा है, 1 से 2 दिन हो रहा है, the girls should take all the medicines which can relieve their pain. Like सिकाई है, like दवाएं बहुत सी आ गई हैं, कोई जरूरत नहीं इस पेन को सहने की. ये भी एक बहुत स्टिग्मा है और मिस इंफॉर्मेशन है कि भैया पेन को रोको मत. नहीं, वो नहीं. पेन को आप दवा लीजिए, पेन ठीक हो जाएगा, आपका काम जो है वो चलता रहेगा, आपको फील नहीं होगा. वो पेन फाइबर्स ब्लॉक कर देगा माइंड, वो लेना चाहिए. बट अगर ये पेन आपका एक्सटेंड हो रहा है थ्रू आउट द साइकिल, एंड इफ इट इज वेरी सीवियर, then it can be an underlying cause for endometriosis, adenomyosis or fibroids. In that case you have to get an ultrasound done and see a doctor. But initially जैसे बच्चों को होता है, लड़कियों को 1-2 दिन periods या premenstrual tension शुरू हो जाता है, they get irritable, this is all because of fall of hormones. इस time hormones भी fall करते हैं, prostaglandins release होते हैं, uterus contract करता है, so there's something happening to your body, उसी वजह से होता है. But it's perfect to take a painkiller or anything to relieve the symptoms. But अगर ये ज़्यादा है, कभी-कभी injectables लगाने पड़ रहे हैं, या it is extending throughout the cycle, और cycle के बाद भी हो रहा है, then they should definitely see a doctor to rule out any underlying medical conditions.
Another thing which I keep on hearing about is polycystic ovarian syndrome and PCOD. What is OD? I don't know. Yeah, So, what are this is a these? very, this is like the bread and butter of a gynecologist. Every girl Okay. is suffering. Everyone is suffering with this disease. आपने अच्छा सवाल पूछा. इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. पीसीओडी एंड पीसीओएस. पीसीओडी में क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. इसमें जो Okay. ओवरी है, ओवरी में देयर आर मल्टीपल सिस्ट. तो दिस इज लाइक लेस सीवियर ऑफ फॉर्म ऑफ पॉली पीसीओएस. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड में हमको छोटे छोटे सिस्ट दिखते हैं ओवरी में, और उसके अलावा कोई सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते. मे भी रेगुलर साइकिल्स हैं और थोड़े थोड़े सिस्ट दिख रहे हैं. ये Mm-hmm. पीसीओडी है. पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सिंड्रोम Mm. में क्या होता है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग. इसमें सिस्ट भी हैं, इसमें इरेगुलर साइकिल्स भी हैं, इसमें Mm. लड़कियों को एक्ने भी बहुत हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, और इसमें हेयर लॉस हो रहा होता है, और इसमें इरेगुलर साइकिल्स हैं, ये इनफर्टिलिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसमें हो जाता है. लाइक ये लोग दे आर मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज इन फ्यूचर. So all these things are, PCOS is a more severe form of PCOD. It is like a multiple, it has so many problems attached to it. So it's manageable. I mean, not manageable through medicines and all. It is manageable through medicines, but it is more advisable to go for a change of lifestyle. तो मैं तो हर एक से कहती हूँ, you should adopt the lifestyle of a simple people, like थोड़ा सा जो लो मिडिल क्लास या जो हमारे यहाँ जो काम वाम करने वाले, इनको नहीं है पीसीओएस. रीजन इज आई थिंक दे आर मोर एक्टिव. इसमें इनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, और इनकी जो मतलब जितनी डाइट है वो उतनी हेवी नहीं डाइट है. है, इनका स्लीपिंग पैटर्न है, इनका जो स्क्रीन टाइम है, और इनका स्ट्रेस लेवल्स हैं, ये सब हम लोगों से बहुत कम होते हैं इन लोगों के. दे स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, और पढ़ाई का टेंशन नहीं है, बहुत स्ट्रेसेस नहीं है, खाना सिंपल है, काम बहुत है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल चल के आते हैं. तो ये सारी चीजें अब हम लोग के बच्चों में, आजकल लड़कियों में weight gain, late sleeping, more screen time, lot of stresses, and ये सारी चीजें ना, these are the real factors of PCOS. So जो PCOS की बच्चियां आती हैं, तो हम पहले तो उनको जिम भेजते हैं, you do exercise. और thin PCOS भी है और fat PCOS भी है, तो बहुत है. कोई बहुत दुबला PCOS भी हो सकता है, और जो अच्छा वेट गेन है वो भी हो सकता है. तो इसमें इसमें बस यही है कि ओवरी इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ फॉलिकल्स, बट दे आर नॉट गुड फॉलिकल्स. इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी, क्योंकि जो एग्स होते हैं, दे आर नॉट हेल्दी एग्स. दे डू नॉट, दिस पेशेंट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंसीव. तो ये है इसके अंदर. और शुरू से ही बच्चों को वेट गेन पे, स्पेशली आज के बच्चों को आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइजेस खत्म हो गई हैं, गेम्स खत्म हो गए हैं, मतलब बच्चों का दौड़ने भागने का काम तो बिल्कुल नहीं है अब. तो उसी लिए ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. मेन इज एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी. वो करेंगे तो Activity. नहीं होगा. बिल्कुल ट्रू. Okay. So a lot of बट बहुत medical सारा questions काम I भी हो asked रहा है. you. अभी बहुत सारा काम भी इस पे हो रहा है, एंड पीपल आर ट्राइंग टू कम अप विथ बेटर मेडिकेशंस एंड थिंग्स, बट स्टिल दे डोंट नो द फुल इटियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज. बट ये तो है कि दिस इज नॉट सीन इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, इट इज ओनली सीन इन हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप. तो इट्स समथिंग टू डू विद द लाइफस्टाइल. Yes, and I've seen it that it flares up, especially if you're very stressed. Stress is one factor, because बहुत simple है. Brain is controlling the ovaries and ovaries are controlling the uterus. So once the brain is stressed, it's giving wrong hormones to the ovaries. Like the proportion goes up and down. The ratio is FSH LH हार्मोन का रेशियो बिगड़ जाता है. तो उसमें instead of producing one good egg in the middle of the cycle, it's producing lots of eggs. तो वो बिल्कुल aberrant हार्मोन प्रोडक्शन होता है, और मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में. दैट इज वाई ये हिर्सुटिज्म बहुत कॉमन हो रहा है आजकल. बच्चों के हेयर ग्रोथ, लड़कियों के हेयर ग्रोथ हो रही है, एक्ने, ये इसीलिए है सारे. और बहुत लेट सोना और बहुत लेट उठना, उसमें भी ये कुछ बॉडी हार्मोन्स रात को जो प्रोड्यूस करती है, वो पूरा साइकिल उसका अपसाइड डाउन हो जा रहा है.
मेडिसिन हैं हम लोग देते हैं एंड इट्स वर्किंग। बहुत लोग जो जल्दी सीख करते हैं हेल्प, सब ठीक हो जाते हैं। और बट ये है कि दे शुड सी अ डॉक्टर। अगर पीसीओएस है या पीसीओडी है तो जरूर देख लें, सूनर द बेटर, सूनर द So, hello. लाइफस्टाइल। इसका कोई इलाज ट्रीटमेंट है, बट दिखाना चाहिए। So, Dr. Sidwat, you're also the face of आपकी सहेली. So, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता हो आपसे, क्योंकि उस वक्त वो आई थिंक वुमेन अक्रॉस इंडिया वुड कनेक्ट विद यू। मैं बताऊं कैन यू हियर? क्वेश्चन? हाँ हाँ, यस हेलो यस यस। जी, या आई एम आई कैन आस्किंग हियर। यू कि what was one question जो आपसे अक्सर उसमें पूछा जाता आमिर, हमारे साथ ये था जी। मैं जब आई थी दुबई से वापस, तो ईटीवी उर्दू में एक प्रोग्राम आता था आपकी सहेली, तो वो है? रेगुलर उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने हमको, तो आई वुड स्पीक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, दे वुड गिव मी टॉपिक्स टू स्पीक ऑन। तो लाइक एक दिन जैसे एंडोमेट्रियोसिस पे बोला, एक दिन फाइब्रॉइड पे बोला, एक दिन इनफर्टिलिटी पे बोला, एक दिन एंटीनेटल केयर पर, तो वेरियस हमारे टॉपिक्स पे हम बात करते थे। तो वो उसी रिलेटेड टॉपिक से लड़कियां या लोग हमसे कनेक्ट होते थे। तो ऐसा था उनका। तो जिस टॉपिक पे, जैसे मैंने फाइब्रॉइड पे बोला, तो वो उस पे ही सवाल मुझसे पूछते थे कि मैम इसका ओके, ट्रीटमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है। इट वाज लाइक दैट। तो राइट। एंड your name has been included in the list of 100 most inspiring women in Uttar Pradesh, of Uttar Pradesh. yeah, thanks to So, Farah and Sabia and all those girls, they included my name. Yeah, but yeah, thank you so so much. how does that recognition, I mean, what does it mean to you? It was a very rewarding thing because I felt rewarded for my little work, whatever I have done. It was very nice. It was a very nice experience. And Farah, Sabia, or you look, sab log, like they are picking up women in every field and trying to, give them some moral support, uplift their work. It's very good. It's like a rewarding, अच्छा reward था एक ये। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। So, if you were to, सारी लड़कियों से, अगर इंडिया की सारी टीनेज लड़कियों से आपको कुछ कहना हो उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग, सो व्हाट विल यू टेल देम? I would tell the girls of today that, see, आपको लड़कों से कोई मुकाबले की जरूरत नहीं है। You don't have to compete with men. Men are different, we are different. तो लेकिन you should understand yourself and you should have a self dignity, you should have your self grace, you should know how important you are. And आप जो हैं, आप important हैं। आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखिए। और स्पेशली एडोलेसेंट बच्चियां जो हैं, उनका ये है कि दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन द स्टडीज एंड दे शुड मोर बी फोकस्ड ऑन द हेल्थ। और मेंटल इशू, हेल्थ इश्यूज से दूर रहें थोड़ा सा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैंने रूरल हेल्थ में भी जाके, जब मैं ज्योत्सना हबीबुल्ला के साथ गई थी, वो बेचारी गांव की बच्चियां थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए, फीमेल सेक्स इज द वीकर सेक्स, वी ऑल नो, एंड इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड, वी आर मोस्ट निग्लेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। अभी भी, आज भी अगर लड़का पैदा होता है सऊदीया में, यूएस में, यहाँ सब लोग खुश होते हैं। ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। और लड़कियों के उस पे कुछ लोग खुश होते हैं, चलो बेटी हो गई, लक्ष्मी आई, ऐसा वैसा। लेकिन बात यह है कि इसमें हम लोगों को ही इम्प्रूव करना है अपने आप को। हमको अपना ग्रेस रखना है, अपना एलिगेंस रखना है। हमको ये बताना है कि हम लोग हम हैं, हम इम्पोर्टेंट है। जस्ट लेट अस बी व्हाट वी आर, दैट इज ऑल वी शुड। आपको लड़कियों को ये जब तक नहीं होगा जब तक एजुकेशन नहीं आएगी। जब एजुकेशन आएगी, बच्चियां समझेंगी कि वो, मैंने रूरल एरियाज में जाके कहा कि तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुमसे तो दुनिया चल रही है। अगर तुम लोग नहीं होगी तो घर नहीं चल सकता किसी का। अगर लड़कियां घर पे नहीं है, अभी मैं ये नहीं कह रही कि एवरीबडी शुड गो आउट एंड वर्क। एम्पावरमेंट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट। एम्पावरमेंट इज सेल्फ एम्पावरमेंट। यू शुड फील दैट यू आर इम्पोर्टेंट। You are important to the house, you are important to your children, you are important to your husband, you are important to your family.
तो और आपके फ्रेंड्स के लिए, तो आप अपने आप को कुछ समझिए। तो जब तक आप नहीं समझेंगी अपने आप को, तो आपको कोई नहीं समझेगा। है बात, सही बात नहीं है? और इसमें यह है कि आपको अपना काम करते रहना चाहिए, वॉट एवर इज डिजाइन टू यू। अभी क्या हो रहा है कि लड़कियां सोचती हैं कि हम लड़कों से कम नहीं। लड़कों से आप कम मत समझिए अपने आप को, बिल्कुल नहीं आप कम है। बट आप समझिए आप जो हैं, आप इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो रूरल बच्चों से यही कहा, मैंने कहा तुम खाना खिलाते हो, तुम्हारी शादी होगी तो तुमसे दुनिया चलेगी, तुमसे बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। तो तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारी तो कुछ है ही नहीं, हमें तो खाना मिले तो मिले, कुछ मतलब कचरा है जैसे हम। ये नहीं सोचना है ना। अपना डिसीजन मेकिंग, अपना पढ़ाई पे फोकस करना, अपनी कैरियर देखना, और आप काम करें या नहीं करें। हाउसवाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीमेन इन द सोसाइटी, एक्चुअली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वही लोग तो घर चलाते हैं, वही लोग ने बच्चों, मेरी मम्मी, शी एम्पावर्ड मी, शी टोल्ड मी, शी वाज द वन लेडी, आयरन लेडी बिहाइंड माय एवरीथिंग। और वो हाउसवाइफ थी। मैं उनकी आज भी कहती हूँ कि उनके जैसा एम्पावर्ड लेडी कोई भी नहीं थी। और हमारी नानी दादी और सब एम्पावर्ड थी, अगर आप सोचें तो इसलिए मेरा यही बच्चियों से कहना है कि आप लोग बिल्कुल ये मत समझिए कि हम कुछ कम हैं, चाहे कोई कुछ कहे। आपको अपने आप को समझना है, यू आर इम्पोर्टेंट, यू कैन डू एवरीथिंग, you can do certain things which are designed to you. We cannot lift up heavy weights, we cannot, but जो हमारा काम है वो हम कर सकते हैं। और पढ़ाई करो, पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है। पढ़ाई में ऐसी फील्ड्स में जाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप उसमें अपना एक्सेल कर सको। तो आजकल तो खैर हर फील्ड में बच्चियां जा रही हैं, एंड बहुत टाइम चेंज हो रहा है इंडिया में, तो बहुत ही चेंज हो रहा है। तो बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट अभी रूरल एरियाज में अभी भी बहुत मतलब बुरा हाल है। और यही सब चीजें हैं बस बच्चियों से कहने की, कि अपने आप को समझो कि हम ठीक हैं, इम्पोर्टेंट है, और हम सब कुछ कर सकते हैं। बस उतना ही मेरा और अपने एक उसमें रहो, अपने हद में रहो और अपने ग्रेस में रहो। तो ये चीज है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बाहर निकल के काम करें। एम्पावरमेंट नहीं का नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं। योरसेल्फ, Respect लव yourself. योरसेल्फ एंड Love रिस्पेक्ट yourself, योरसेल्फ। respect yourself, make your own decisions, and respect others, respect your family members. And आपकी जो एक grace and elegance है लेडी की, वो आप रखिए अपने आप पास, and do what you can do and bring a change. बहुत सारी लेडीज हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप सिलाई कर सकती हैं घर बैठ के, आप पैसा कमा सकती हैं घर बैठे बैठे। आप कुछ भी, आजकल बैग्स हैं, आजकल तो बहुत चीजें हो गई हैं ऐसे। तो आप बैठ के बैग से लिए, आपके पास 4 पैसे आएंगे, आपको थोड़ा लगेगा कि मुझे कुछ लेना है, तो आई विल नॉट हैव टू आस्क एनीबडी, आई कैन बाय इट माई सेल्फ। आपको भाई से नहीं पूछना, फादर से नहीं पूछना। जब बड़े हो गए तो अपने थोड़ा सा कोशिश करिए कि हम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दें, और अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। Very true. So, with more than 30 years of experience working across in India and abroad, what is it still that breaks your heart if it does? Is there anything? सॉरी, आई I मिस्ड mean, योर किस क्वेश्चन। चीज का अभी भी आपको अफसोस होता है कि कोई एक चीज जो बेहतर हो सकती थी या बेहतर होनी चाहिए? बेहतर अब बहुत स्लो मतलब प्रोग्रेस हो रही है लोगों में। अभी तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स लेडीज के उसमें डाल दी हैं, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी चीजें ऐसी। रूरल अर्बन लेडीज तो अच्छी खासी ठीक मतलब अच्छी सिचुएशन में है। बट वही बात है, थोड़ा सा आप भी देखते होंगे न्यूज में, आज यहाँ रेप हो गया, आज यहाँ हो गया, आज यहाँ। तो इसमें क्योंकि लेडीज वीक मतलब फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते ना, तो उसकी वजह से आपको जो है वो, तो अपनी प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है भाई। बाकी तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। एजुकेशन, मदर्स को अपने बच्चों को भी एजुकेशन देनी चाहिए, सारे बेटों को, कि रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट वुमेन। तो ये सारी चीजें माँ ही करती हैं। एक लड़की जो है वो बेटी भी होती है, माँ भी होती है, सास भी होती है, वाइफ भी होती है, ग्रैंड मदर भी होती है। तो सारे रोल्स उसको अपने अच्छे से निभाने हैं। और अफसोस इसी बात का होता है जो आज भी लाइक पीपल आर, विमेन हेल्थ इज नेग्लेक्टेड ऑल ओवर। मतलब लेडीज अपना नहीं ध्यान रखती हैं।
प्रेगनेंसी में भी 6-7 मंथ पे आके एक बार चेकअप करा लेंगी। कैल्शियम आयरन नहीं है तो चलता है, अगर थोड़े पैसे कम है, लाइक आई एम टॉकिंग मतलब लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, नहीं है तो नहीं खाएंगी। और सबका बैठ के, अभी भी बेचारी काम करती हैं बैठ के, इतने मतलब 9 मंथ्स तक पोछा लगाने आती हैं, काम करती हैं। तो उनको ये चीजें जो हैं, दे शुड बी रेस्टिंग एट दिस स्टेज, बट वो करती है बेचारी, बिकॉज उनको पैसे कमाने हैं या जो भी है। और जो घर पे भी हैं वो भी खाना बनाती हैं, कुछ भी हो जाए उनको करना ही है। तो ये चीजें अभी भी थोड़ा पेन देती हैं कि अभी भी थोड़ी इक्वालिटी सोसाइटी में और होनी चाहिए, इस लेवल पे इक्वालिटी होनी चाहिए, केयर पे इक्वालिटी होनी चाहिए। तो सबको मतलब रिस्पेक्ट और प्यार अफेक्शन लेडीज को मिलना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो घर का भी माहौल है वो बहुत बदल जाएगा, क्योंकि लेडीज की मेंटल हेल्थ अभी बहुत इफेक्टेड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी परेशान है लड़कियां, लेडीज, मतलब हमको आके शेयर करती है हमसे कि मैम ऐसा हो गया, वैसा हो गया। घर में सास जो ज्वाइंट फैमिलीज में रह रहे हैं वहाँ इश्यूज हैं। अब कुछ भी हो तो कहते हैं बच्चे तो सबके होते हैं, काम करो जाके। ये सब चीजें थोड़ा कंसिडरेट अगर हो जाएगी सोसाइटी, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, हेल्प मिलेगी उन लोगों को। क्योंकि इस पीरियड में स्पेशली जो 9 मंथ्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बच्चियां परेशानियां उठा रही होती हैं। तो उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, स्पेशली एटलीस्ट जो लेडीज जो माँ हैं या सास हैं या जो भी लेडीज हैं, वो तो थोड़ा समझें कि हम भी इस दौर से गुजरे थे। तो ये चीजें देख के थोड़ा सोच सकता है कि अभी भी अगर इनफर्टिलिटी है किसी को, तो सबसे पहले फीमेल की टेस्टिंग होगी। बहुत, अब तो खैर मेल्स मैं कहती हूँ बहुत चेंज हो गए, बहुत लड़के भी आते हैं अपनी टेस्टिंग कराने, बट ज्यादातर ये होता है कि स्टिग्मा फीमेल को जाता है कि इनके बच्चे नहीं हो रहे, है ना, ये आपने सुना ही होगा, उनके बच्चे नहीं हो रहे। उनके तो बच्चे ये नहीं हो चीज जो रहे। है ना, दोनों साइड से होता है, मेल फर्टिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फीमेल भी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, फिर उसके साथ क्या होता है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दे कैन नॉट फेस पीपल। तो उस लड़की को ही सब टारगेट करते हैं। ये चीजें जो मैं देखते इसलिए तो डाइवोर्स बहुत लेकिन सारी हो जाती हैं टारगेट कि करने का बच्चे नहीं मैंने हो ये रहे। भी देखा है कि बच्चे हो भी जाते हैं, वो सब कुछ हो गया तो स्टिल वो उसी की ड्यूटी रहती है, मतलब वो खाना भी बनाएगी और वो बच्चे की भी केयर करेगी। Exactly. ये तो और अभी भी होता है, बिल्कुल। अगर वो उसने आई मीन उसको क्लीन अप करना है तो वो भी अम्मा सब का ही करेगी, सब काम। करेगी, बिल्कुल। राइट। वो तो उनका बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास हेल्प्स हैं तो, और अगर हस्बैंड भी बाहर काम कर रहा है तो अगर आप घर पे, तो इट्स ऑल राइट, भाई चलो आप घर पे काम कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं। बट अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं, देन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इन वेस्ट। तो वहां पर सब लोग शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ये है कि अगर लड़की बाहर भी जा रही है तो भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, बाहर भी काम कर रही है, अंदर भी काम कर रही है, बच्चे का देखना। लेकिन अब बहुत हमें टाइम चेंज हो रहा है, आई हैव नोटिस नाउ कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की थोड़ा थोड़ा एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट सब तरफ हो रहा है। इतने आप लोग जो इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के और सब करते हैं, तो पीपल आर चेंजिंग, एंड स्पेशली मेन आर चेंजिंग। अभी तो ये बहुत हाँ, चेंजेस आ गए हैं, बहुत चेंजेस बहुत आ गए हैं, सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस बहुत हैं, सारे लेकिन अभी भी चेंज हमने अपनी लाइफ में देख लिया। इतने जो हमारे फादर लोग थे और ग्रैंडफादर थे, उनको बच्चों से तो बिल्कुल मतलब नहीं था। हमारे फादर को शायद हमें याद भी नहीं होगा हम किस क्लास में होते थे। मम्मी इनको सब करती थी, बट आई लेकिन मीन हमारे बच्चों को मेरे हस्बैंड ने सब पाला। तो ऐसे चेंज हो रहा है, एंड आजकल के फादर्स तो और भी सब मतलब बहुत करते हैं बच्चे। तो चेंज हो सेम रहे हैं, सेम सोसाइटी सेम। चेंज हो रही है, इट्स इवॉल्विंग, मतलब इट्स प्रॉमिसिंग। तो अच्छी नो, बात है। nobody in my school knew my father. कभी गए That's what नहीं, I'm saying. It's not like कभी this. गए नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कौन है जी कौन। जी। फादर वाज अली लाइक वन बिग फिगर, उनके सामने मतलब हम लोग ऐसे बोलना वेरी और उनसे जोक करना नहीं फॉर्मल अलाउड रिलेशन, था। बहुत फॉर्मल फॉर्मेलिटी रिलेशन वाला रिलेशन होता था। या बिल्कुल। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी बच्चियां, अभी मेरे बच्चे तो बहुत अटैच, सब बच्चे आजकल बाप से, फादर से ज्यादा है, फादर्स भी बहुत मिंगल करते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं। दैट इज गुड। बस हेल्दी सोसाइटी, स्पेशली अ हैप्पी होम इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू अ चाइल्ड। अपने हस्बैंड ट्रू। वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप, घर में सुकून, घर में मोहब्बत, वो इंसान अच्छा ही होगा बड़े होके। दैट इज ट्रू।
अगर घर में प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोकन होम है, कुछ है, तो आप उस बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, लड़की हो या लड़का हो, सब पे इफेक्ट आता है उसका। तो ये सारी चीजें थोड़ी समझाने वाली हैं, एंड आई थिंक यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड जॉब, जो इस तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं Thank you. लोगों, डिफरेंट लोगों के साथ, एंड इट स्प्रेड्स द वर्ड, इट मेक्स अ डिफरेंस। लोगों को बहुत सुनाई देता है और बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। टाइम्स आर चेंजिंग, होपफुली। Hopefully. So, one final question to you. What's your hope for the next generation of gynecologists, especially female doctors जो हैं इंडिया में? जी जी जी, दे आर वेरी, द फ्यूचर इज वेरी प्रॉमिसिंग एक्चुअली। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, एंड बहुत ही माइक्रो, मैं कहती हूँ माइक्रो टेक्निक्स आ रही हैं सर्जरी में, एंड अभी ओपन सर्जरी तो बहुत ही कम हो रही है, बहुत ही लाइक लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज हो रही हैं, तो एक दो दो इंसिजन्स आते हैं 1-1 सेंटीमीटर के, सेकेंड डे डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट, लेस टाइम, लेस पेन। तो ये सारी चीजें अभी इवॉल्व हो रही हैं। यंग जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर लर्निंग, दे आर डूइंग। और इनफर्टिलिटी राइज पे तो है, बट एट द सेम टाइम आईवीएफ में बहुत, मतलब इन विट्रो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत काम हो रहा है। तो पहले इतना नहीं हो रहा था, अभी everybody can hope to have a child, But every single person I'm can so hope. sorry to cut you, but you put out a very important thing. I forgot to ask you about this. Infertility क्यों बढ़ रही है? इंडिया में भी जो रेट है वो कम हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, और या ये पूरी बहुत दुनिया कम में हो हो रहा रहा है, है, पूरी बहुत दुनिया कम में हो हो रहा रहा है, है। पूरी दुनिया में कम हो रहा है। तो इसमें दो जो इंडिया का जो मैं देखती हूँ, देखो मैं तो काम किया गल्फ में, तो गल्फ में तो इनफर्टिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि वहां पर तो क्या था रीजन, आई डोंट नो, आई थिंक लेस ऑफ स्ट्रेसेस, women used to stay in the house when I was there like 15 years back। तो जब इतना ओपन नहीं था तो स्ट्रेसेस कम थे, प्रॉब्ली उनका फर्टिलिटी बहुत थी, हाई थी। बट इंडिया में अभी हमारी जो एज है, हम लोग वेस्ट से 6 years अहेड हैं। अगर कोई वेस्ट की लड़की 30 years की है, तो इंडियन लड़की की एज वो 30, लाइक 30 years ऑफ एज ऑफ इंडियन गर्ल इज इक्वल टू 36 years ऑफ वेस्टर्न लेडी। इतना हम ओके। लोगों में हाँ, हमारे अंदर आई थिंक ये पीसीओडी और पीसीओएस का बहुत फैक्टर आ रहा है। इसके अंदर वही स्ट्रेसेस हैं बच्चों में, और मेंटल हेल्थ, और इन सब चीज़ों की वजह से लाइफस्टाइल इसमें, और जो थोड़ा लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है उसमें डिफरेंट कॉजेज हैं। उसमें ट्यूबरक्लोसिस इज वन मेन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ब्लॉकेजेस, और जो एफ्लुएंट सोसाइटीज हैं उसमें पीसीओएस, और मेल इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो ऑन द राइज, बिकॉज smoking or alcoholism, all these things are not very good। तो all these things are, और भी क्या फैक्टर्स हैं, मेनली तो लाइफस्टाइल ही कह लीजिए और स्ट्रेस कह So लीजिए। delayed तो marriages, I think, also delayed because people are marriages is one getting very important married. point you have pointed out, yeah, true। Yeah, they're Delayed not getting marriages married. का, yeah, कोई नहीं शादी कर रहा है, by the time they think of getting married they are 30-32 पे, तो पढ़ाई, मतलब पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो जब 30-32 पे आप शादी करेंगे, तो आपका जो एक AMH होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो दिखाता है, वो हार्मोन का टेस्ट हम लोग कराते हैं, वो दिखाता है कितने फॉलिकल्स हैं आपके अंदर। तो वो बहुत ही लो आता है आजकल, द नॉर्मल वैल्यूज से, लाइक किसी नॉर्मल वैल्यूज लाइक बिटवीन 3 and 6, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 1.5 आ रहा है एट द एज ऑफ 30-31। तो वो फर्टिलिटी रेट तो लो ही हो ही जाना है फौरन ही। तो ये चीज तो है, फर्टिलिटी बहुत लो हो रही है इंडिया में, और इसीलिए ये जितना आईवीएफ सेंटर्स आजकल आ रहे हैं, तो दैट इज द फ्यूचर आई थिंक। पूरा फ्यूचर, एक मूवी भी आई थी इस पे, तो आपने पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, एक मूवी आई थी तो उसमें थोड़ा सा मैंने देखी थी, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग, नाम याद नहीं आ रहा। उसमें दे यूज टू फाइंड Let me फर्टिलिटी, search. या क्या नाम था उसका, बहुत ये 2030 पता नहीं क्या था, कई सेंचुरीज के बाद जो है, वो कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, और फर्टाइल फर्टाइल वुमेन, उस मूवी में ही दिखाया है कि अगर एक कोई फर्टाइल वुमेन है, तो उसको उसको छुपाए छुपाए घूमते हैं, और वो मतलब वो ह्यूमन रेस बढ़ाएगी। और Oh, that was English movies तो मुझे मालूम है, Children of Men, I think.
That was one Yeah, movie मेरे ख्याल से जिसमें वही एक लड़की प्रेग्नेंट होती है आफ्टर years and वो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट उसको दैट इज द व्हाट इज द फ्यूचर। अभी वेस्ट में भी आप देखिए कहीं आपको लाइक जर्मनी में मेरी डॉटर तो आई ऑफन गो टू द जर्मनी, वहां पर सारी स्ट्रॉलर सोसाइटी है, स्ट्रॉलर फ्रेंडली सोसाइटी, एवरीबॉडी इज ऑन स्ट्रॉलर। आपकी एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है बट आपके पास बच्चे नहीं है, यंग जनरेशन बिल्कुल नहीं है, बच्चे रेयरली कहीं दिखते थे। और नॉर्वेन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सब जगह पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे जा रहा है। वहां तो शायद सब दे जगह डोंट वांट टू। ये भी एक है, लेडी लड़कियों को समझना चाहिए कि बच्चे होने हैं बिकॉज आप ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज कहीं से और बच्चे नहीं आ सकते हैं। आजकल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब लड़कियां चाहती हैं कि शादी लेट हो और फिर बच्चा और भी लेट हो। जब प्लान करेंगे, जब प्लान करेंगे तो नहीं होता फिर। So this is one important message I want to give to the girls that आप ही बच्चा ला सकते हैं। यू लाइक आपको वर्ल्ड चलनी है तो बच्चे तो इंसान तो चाहिए हमको। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज और है। I hope our species doesn't die like that. Extinction हो जाए, क्योंकि जी कल ये जी परसों वो राइनोसरस मर गया, जो लास्ट बचा हुआ था वो ग्रे राइनोसरस, गॉड। last of its species. I mean, their species is dead now. I और hope. हमने हमारी जो जनरेशन जैसे हम लोग की जब हमारी जितने भी क्लास फेलोज थी, जितने भी हमारी फ्रेंड्स थी, ये पॉइंट ही नहीं था कि बच्चा कब होगा। कॉन्ट्रसेप्शन वाज द प्रॉब्लम और फर्टिलिटी वाज नेवर अ प्रॉब्लम। It was never जैसी a शादी problem. हुई सबके बच्चे होने लगे। बट ये विद इन स्पैन ऑफ 30 years मैंने देखा है कितना डिक्लाइन हो गया। अभी अभी तो बच्चे मतलब एक किसी की प्रेगनेंसी होती है तो कितनी खुशी होती है। और दिस इज वन बिग रीजन फॉर अ सिजेरियन सेक्शन। पीपल डोंट वांट टू टेक चांसेस। हो गई तो भैया हो जाए, बच्चा आ जाए। इतने से स्पैन में इतना हो गया तो यू कैन इमेजिन आगे जाके क्या होगा। तो Yeah, it's इसमें changing very चेंज करना fast now. पड़ेगा ना, इट्स वेरी गोइंग फास्ट। तो ये तो It's very fast. So thank you, doctor. Thank you so much. That was like such an enlightening session. I ended up asking so many questions, and I hope that they were of थैंक यू सो use to मच। people. It was a pleasure speaking to you and to everybody. If any questions, I'll be very happy to take them on air. Or it was really lovely Obviously, speaking and to you you. can connect with. Are you there on Facebook or somewhere? Yeah, I'm on Facebook. Yeah. I'm on What's your Facebook. Facebook handle? Dr. Uh, Sitwat Khan. Dr. Sitwat Khan. Yeah, Sitwat Khan, not Doctor Sitwat Khan. Sitwat Khan. Okay. Yeah. So if you Yeah. want to get in touch with her, if you want to ask her anything, Anytime. you can connect with Anytime. her on Facebook. It will be a pleasure. It will be a pleasure. I'm just working It's for this reason कि I want to जितना भी कुछ पढ़ा है, जितना कुछ देखा है, I want to pass it on to next generations ताकि किसी की हेल्प हो जाए। एक लोग भी अभी तो हम तो अबॉर्शन नहीं करते। I can say it on this platform. I do not kill babies and I do not want anybody to go for abortions. There are ways which you can protect conceptions. तो ये भी एक रीजन है कि मतलब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैसेज है लड़कियों के लिए कि अबॉर्शंस आर बैड, मतलब दे आर लाइक किलिंग बेबीज एंड नोबडी and they're शुड डू bad for इट। your body also. First of all, they're इज bad बैड for फॉर the द body. बॉडी। ट्रू। ये भी एक रीजन था जो मैं बताना भूल गई। रूरल हेल्थ, रूरल एरिया में मेटरनल मोर्टालिटी इसकी वजह से भी बहुत है। वहाँ रिप्रोडक्टिव उनके यहाँ इनफर्टिलिटी कम है, उनके यहाँ तो प्रोडक्शन बहुत है बच्चों का, और उनके यहाँ जो है ये सेप्टिक अबॉर्शंस ये सब बहुत हैं। तो डॉक्टर्स हैं नहीं रूरल एरियाज में। तो ये सब आई थिंक आप ही लोग एनजीओज और ये सब जो लोग हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक एक आदमी भी एक एक डिफरेंस बनाएगा तो द सोसाइटी विल चेंज। सो दैट्स इट। So thank you so much, Dr. थैंक Sitwat यू Khan. सो That मच। थैंक was absolutely brilliant to have you here. And I think यू इतने सारे questions पूछ लेना. I think there was these would somebody who was listening must be getting some knowledge out of it, and especially I want young girls to get that knowledge that you need Yeah. to move your body, you need to eat healthy, and you need to do Yes. all that and True. lessen Very good. your screen time and Yeah. focus more on your Any body. time जो भी किसी की भी हेल्प हो, आई एम रेडी टू हेल्प इन एनी वे। कोई भी सब पूछना चाहे सवाल, कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, दे कैन कम टू द क्लिनिक, दे कैन आस्क मी ऑन फोन, एनीथिंग एनी टाइम। So you've got थैंक यू such a सो lovely मच। doctor there, so please get in touch with her and
Thank you once again. Have a Thank you so lovely much. night and Thank you so have much. a lovely week Thank ahead. you. And as for the rest of you, we'll be meeting again next week, next Sunday. Thank you so much. Until then, have a lovely, lovely week ahead. Good Thank you. night. Bye Thank you bye. so much. Bye Thank you, bye. ma'am. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you so much. Thank you.